Write down next chapter number 1. Chapter number 1. First ODE, ordinary differential equation of ordinary differential equation of first order and degree. First order ODE of first order, comma degree, and its application. तो application only one will start. Application 22 marks. 1 minute. That PPT open करो. मैं खाली का सिलेबस सिलेबस में क्या क्या है. फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर डिग्री एंड जनरल सॉल्यूशन. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट असेल नॉन होमोजेनियस differential equation. Third है exact differential equation. Exact differential equation. Fourth point है linear differential equation. Linear differential equation. Fifth है application of orthogonal trajectories. Sixth है application of one minute.
sorry, application of electrical and mechanical engineering. और टोटल सिलेबस है कि ये जो हमारा सिलेबस है, देखो डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, उसके बाद डिग्री और जनरल सॉल्यूशंस का डेफिनेशन होगा। उसके बाद नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका एक पार्ट ऑब्लिक में होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या है, रिड्यूसिबल टू, वो एक पार्ट है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो अंडर आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंडर ही आएगा वो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी सेम रिड्यूस टू linear differential equation, given differential equation into linear differential equation. Next क्या है, applications of orthogonal trajectories. Next application of electrical and mechanical engineering. ये हमारा क्या है, सिलेबस है। ओके, ओके नेक्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन म्हणजे ओडीई, जे आपण ओडीई म्हणतो। वेट करा, स्टुडंट फोकस। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का त्यानंतर काय असेल, प्रिफिक्सेस। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन आर इंट्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट फील्ड्स and its importance appear not only in mathematics but also in engineering. But differential equation जे importance है not only in mathematics also but also in engineering, natural science, chemical science, also medicine, ecology and economy. This is the use of differential equation. But differential equation चा कुठे कुठे यूज होतो, imports not appear in only in mathematics, it is also, but it is also used in engineering, natural science, chemical science, medicine, ecology, economics. परंतु तुम्ही बरेच वेळा म्हणता ना आपण मॅथ्सचा यूज का करायचा, 1 मिनिट।
Okay, next, due to its importance in differential equation, different fields, I collected the laws and methods of solution of ordinary differential equation as introduction to study it and to be as a base to study theoretical, physical and understand the physical meaning of relation. ते आपल्याला कशासाठी यूज करायचे, जे यूज करण्यासाठी आपल्याला काय काय लागणार आहेत ते आपण या चॅप्टरमध्ये शिकायचं. Okay, first are definitions. First definition, differential equation. What differential equation is an equation involving an unknown functions and its a derivative. Is an equation involving an unknown functions and its a derivative. Unknown functions असेल and unknown functions काय असेल and its a derivative. Simply तुम्ही असे म्हणू शकता an equation involve a derivative. An equation involving derivative means dy by dx plus y is equal to 0 असेल. This equation involves derivative. ज्या इक्वेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह इन्व्हॉल्व असेल दैट इक्वेशन इज नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन. सिंपल डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो इसमें. कौन सी सिंपल डेफिनेशन इसमें? An equation which involve derivative. An equation which involve derivative. That equation is called a differential equation. Simple definition. For example, this we have to use this example. Dy by dx plus y is equal to 0. Also, we write as d2y by dx square plus 2x dy by dx plus yx is equal to 0. This is also differential equation because it involve derivative. Derivative means dy by dx. If any function, if dy by dx is present, then that function is called a differential equation. Simple. काय डेफिनेशन डिफरन्शियल इक्वेशनची? जर दिलेल्या इक्वेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह इन्व्हॉल्व आहे बा, काय म्हणतो मी, जर डेरिव्हेटिव्ह इन्व्हॉल्व असेल दॅट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरन्शियल इक्वेशन. सिंपल. 1 minute network is charging. Okay. First definition समजली. Differential equation, an equation which involving unknown functions and its a derivative. Okay, and also a simple definition is there. If a given equation involve a derivative, that equation is called a differential equation. Okay, next one, ordinary differential equation. कोई इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम है. इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल आर ऑर्डिनरी. ODE means castle only one independent variable. This means only one independent variable means this is dy by dx. Okay, this is dependent variable. You know that this is dependent variable because y depends on x and this is independent variable. Let's come to ordinary differential equation. Only one independent variable. Next, partial differential equation, and differential equation involving two or more independent variables, and it's a differential or partial. We are study earlier in last semester the partial differential equation, the concept of partial differential equation. In that concept, we have to use dy by dx, sorry, dou y by dou x, dou x by dou y, next dou z by dou x. This is partial differential equation. What is the partial differential equation? If given equation involve two or more than two independent variables, two or more than two independent variables, that differential equation is called a
पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन, त्याला आपण काय म्हणू शकता, पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. सिंपल डेफिनेशन आहे जे आपण लास्ट सेमेस्टर में बऱ्याच चैप्टर में अपन यूज के हैं. ओके, हमने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है उन्हें लास्ट सेम में यूज किए. ओके, डी वाई डो वाई बाय डो एक्स हमने निकाला, डो जेड बाय डो एक्स निकाला, जैकोबियन के वक्त हमने वो यूज किया है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते वक्त भी हमने यूज किया उसको. ओके, आणि ओनली वन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल ओडीई कशाला म्हणतात, जे तुम्ही 12th मध्ये शिकलेला आहात. डेरिव्हेटिव्ह, सिंपल डेरिव्हेटिव्ह काढतो आपण, ज्यामध्ये डिनोमिनेटरला फक्त एक्स असतं तर आपण वाय वगैरे यूज करत नाही, फक्त एक्स असतं तिथं ओनली. आणि जर वाय असेल तर ओनली वाय असते, त्यामध्ये वाय आणि एक्स दोन्ही येत नाहीत. जर एक येत असेल तर त्याला काय म्हणणार आपण, ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन. आणि दोन्ही पण येतात, वाय पण येतं आणि एक्स पण येतं, मीन्स विच इज पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. Order of differential equation is the order of the highest derivative appearing in the equation. what definition काय आहे? order of differential equation is the order of the highest derivative appearing in the equation. तुम्ही नोट्स डिटेक्ट करताय ना, माझ्याबरोबर नोट्स डिटेक्ट करा, आणि कन्सेप्ट आहे तुम्हाला डेफिनेशन वगैरे. ऑब्जेक्टिव्हला वगैरे विचारू शकतो, त्यावरचे एक्झाम्पल पडू शकतो तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये. ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन is the order of the highest derivative appearing in the equation. what definition काय, is the order of the highest derivative in appearing in the given equation. जिसका इसमें क्या यूज करना है हमें, अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उतनी उसकी क्या होगी, ऑर्डर होगी. सिंपल कंसेप्ट है. देखो क्या करना है इसमें, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स आप अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है सपोज, ओके, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो. यहाँ पे कोई और कंसिडर करने की जरूरत नहीं, सिंपल ये है, यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं डो टू वाई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डो वाई बाई डो एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 0. एक क्वेश्चन हमने कंसिडर करेंगे. ओके, तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर निकालनी है. तो फर्स्ट एक क्या चेक करना होगा, जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशियल है क्या नहीं चेक करना होगा ना. डिफरेंशियल मीन्स क्या है, अगर इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन. सिंपल, ज्याच्यामध्ये डेरिवेटिव्ह आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, डिफरेंशियल इक्वेशन. तर अशा डिफरेंशियल इक्वेशनची आपल्याला काय करायची, ऑर्डर फाइंड करायची आहे. तर ती ऑर्डर कशी फाइंड करायची, ज्या डिफरेंशियल इक्वेशन मधलं काय पाहिजे, त्या डिफरेंशियल इक्वेशन मधलं काय पाहिजे, जे हायेस्ट डेरिवेटिव्ह आहे, किती हायेस्ट डेरिवेटिव्ह तो चेक करायचं. ती त्याची काय असणार आहे, ऑर्डर असणार आहे. तुम्ही हायेस्ट डेरिवेटिव्ह जर चेक केला तर हायेस्ट डेरिवेटिव्ह म्हणजे काय असणार आहे, ती त्याची काय असणार आहे, ऑर्डर असणार. मग हायेस्ट डेरिवेटिव्ह कसा ओळखायचा, तर बघा हे काय असणार है, देखो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर हम कैसे चूज करेंगे. तो इसमें सिंपल है, जो देख लो डी वाई बाई डी एक्स मतलब 1 टाइम्स डेरिवेटिव है ना, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब 1 टाइम्स डेरिवेटिव. डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 टाइम्स होगा. अगर डी थ्री बाई ऐसा हो रहा है आपके पास, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, मतलब ये क्या होगा, थर्ड डेरिवेटिव हो गया. ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, ये nth डेरिवेटिव आपने पढ़ा है. nth डेरिवेटिव याद है क्या नहीं वो पता नहीं मुझे, लेकिन आपने पढ़ा है. ओके, डो रेस्ट टू एन वाई अपॉन डो एक्स रेस्ट, सॉरी डी रेस्ट टू एन अपॉन वाई, सॉरी डी रेस्ट टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस्ट टू एन, मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन. तो चेक कर दो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है. फर्स्ट एग्जांपल में हाईएस्ट डेरिवेटिव ये जो है वो क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव. इसका मतलब इसके ऑर्डर कितनी हो गई, ऑर्डर इज इक्वल टू 2. द सेकंड एग्जांपल कंसिडर करा, याच्यामध्ये फक्त काय, ओनली वन डेरिवेटिव इज देयर, डी वाई बाय डी एक्स. ओके, देन इट्स ऑर्डर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्डर है ना, इसे हम क्या कहेंगे, ओनली वन ऑर्डर. नेक्स्ट, degree of differential equation is the power of highest derivative appearing in the equation, is the power of highest derivative
अपेयरिंग इन द इक्वेशन, ओके, जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर चेक करने में, ओके। लेकिन इसमें कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है, बट it is not involving, but it is a I think 1 minute, it's the power of highest derivative something, इसमें कुछ तो रही चीज अभी चेक कर। The Casanova concept which is 1 minute, comma, you can write down which is free from, which is free from a radical and fractions, radical and fractions. Fractions means 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by, and radicals means square root, cube root, nth root, and fractions means 5 by 3 ऐसे लगे, okay. So which is free from these things, which things radical and fractions. एग्जाम्पल में वो नहीं आना चाहिए, आने के बाद उसको फर्स्ट सिंप्लीफाई कर दो उसको, और उसके बाद आप उसके डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ओके, सॉरी उसका डिग्री निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक एग्जाम्पल, d2y by dx square plus dy by dx, x dy by dx plus 2xy is equal to 0. Given example, order of given example is 2. इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ओके। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो क्या होगी, उसकी ऑर्डर होगी, ओके। तो नेक्स्ट इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या दिया, इज द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अपन ऑलरेडी we have to find the highest derivative of given example, okay. Highest derivative means 2 d2y by dx x square. This is the highest derivative in the given differential equation. Now but we have to first check the given differential equation which is free from radical and fractions. तर त्या गिवन एक्झाम्पल मध्ये रॅडिकल आणि फ्रॅक्शन्स नाही यायला पाहिजेत, ओके. ते जर येत असेल तर अगोदर ते तुम्ही सिम्प्लिफाय करा, ते पण तुम्हाला सांगतो मी कसं एक्झाम्पल असेल. सपोज फॉर एक्झाम्पल d2y by dx square is equal to square root of dy by dx. Hello, d2y by dx square is equal to square root of dy by dx. Square root means radicals are present. So first we remove these radicals, and after that we have to find the degree of given example. Otherwise, if we find the degree of this equation, the degree of this equation is only 1 because the highest derivative is 2. Okay, and the power of this d2y by dx square is 1. But if we not solving the given example, we have to find the directly or degree of given example, which is not possible because first we have to simplify this. We have to remove the remove radical and fractions. Means अब पावर में जो टर्म्स है उसको रिमूव कर दो फर्स्ट, जो फ्रैक्शंस आ रहा है या रेडिकल आ रहा है उसको रिमूव कर दो, उसके बाद उसके डेरिवेटिव निकाल दो. मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा कैसे एग्जांपल करते हैं, वो भी बताऊंगा मैं. तो पहले सिंपल सिंपल पार्ट लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, ओके.
Okay, order of this given equation is a 2. Next derivative. Now, degree of the given equation is, first we have to check which is free from radical and fractions. Yes, it is it free from radical and fractions. गिवन इक्वेशन में रेडिकल भी नहीं है और फ्रैक्शंस भी नहीं है. ओके, तो इसकी डिग्री कितनी होंगी 1. पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है. देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 1. एग्जांपल लिखो, एग्जांपल के नीचे आंसर भी लिखो. Write down more example. Example number second and the order and degree of given example. Okay, order and degree. Sorry, equation है. Example d2y by dx square is equal to square root of dy by dx plus 1. ओके, देखिए एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है. तो इसमें आप देख सकते हो गिवन एग्जांपल में ए रेडिकल है. ओके, स्क्वायर रूट इसका मतलब है रेडिकल है, स्क्वायर रूट होगा, नहीं तो रेस्ट 1/2 होगा, रेस्ट 3/5 होगा. ये फ्रैक्शन है, ये रेडिकल है. रेडिकल मीन्स रूट होता है, उसके बाद क्यूब रूट होता है, उसके बाद फोर्थ रूट होता है, उसके बाद nth रूट होता है. उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स. ओके, और ये जो 3/5 4/5 5/3, तो ये क्या है, फ्रैक्शंस है. ओके, so therefore, first we remove this radical. How to remove this radical? This is square root. Just we have to take the square on both sides. आता यामध्ये हे स्क्वेअर रूट आहे, जो स्क्वेअर घ्या, टेकिंग स्क्वेअर ऑन बोथ साइड्स. काय येतं, d2y/dx² ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू. आता आपण याचा स्क्वेअर घेतला आणि स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर काय होईल, कॅन्सल होईल. द रिमेनिंग पार्ट इज dy/dx plus 1. चेक करा which is the highest derivative in given differential equation.
d2y by and the dy by dx है d2y by dx square है. This two are the highest derivative. Therefore, order is 2. Next, we have to check the degree. How to check degree? The highest, the power of highest derivative. This is the highest derivative, and we have to check the power of highest derivative is. First, we have to check our highest derivative in given differential equation. After that, check the power of highest derivative. This is the highest derivative, and this is the power of highest derivative. Highest derivative power is 2. As degree is 2, order is 2, and degree is also 2. But you can't simplify this example and you directly find the order and degree of the given equation. Then check here. The degree of this equation is only 1, which is wrong, because first we the remove रेडिकल एंड फ्रैक्शंस. फर्स्ट आपको क्या करना है, रेडिकल और फ्रैक्शंस को रिमूव करना है. उसके बाद ही आप डिग्री निकाल सकते हो. आप ऑर्डर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर चेंज नहीं होगा. अगर आपने फ्रैक्शंस रिमूव किया नहीं किया तो ऑर्डर में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, ऑर्डर जो है वही आएगा. सिर्फ डिग्री में चेंज होगा, और जो डिग्री में चेंज होगा वो होगा, लेकिन जो रिमूव करने के बाद डिग्री आएगी वो सही होगा. जो फर्स्ट आप बोल रहे हैं, बोलेंगे कि और भाई इसका डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव आपने ले लिया, इसका ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया. ओके, डायरेक्ट 1 चलेगा, ऑर्डर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑर्डर इसका, सॉरी इसका ऑर्डर 2 है. ऑर्डर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन डिग्री आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते. ओके, और हम एग्जांपल देंगे. एग्जांपल फर्स्ट हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, उसके बाद हम एग्जांपल भी लेंगे. Okay, order of differential equation is the order of highest derivative appearing in the equation. Okay, next, degree of differential equation is the power of highest derivative appearing in the equation. The Kastner, which is free from notes में लिख के रखो, which is notes में लिया है, which is free from radical and fractions. Next, particular solution of a differential equation is any one solution. जे सोल्यूशन येईल त्याला काय म्हणणार आपण, पर्टिक्युलर सोल्युशन. जे जर एकच सोल्युशन आलं तर त्याला काय म्हणायचं, पर्टिक्युलर सोल्युशन. द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस. उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन आ रहे उसका हम क्या कहेंगे, जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. पर्टिकुलर मतलब एक ही उसका आंसर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. लेकिन बहुत के सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो क्या होगा वो, द जनरल सॉल्यूशन. An equation which involves unknown functions and its derivative. Ordinary differential equation not involving partial derivative, involving partial derivative as it is. Okay. Example, this is example, d2y by dx square plus dy by dx is equal to 3x sin y. Second order differential equation. और एक कितना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव 1 है, इसमें डेरिवेटिव कितना है, 2 है. तो आप इसके डिग्री भी निकाल सकते हो. देखो इसके ऑर्डर कितनी होगी और डिग्री कितनी होगी. देखो इसमें फ्रैक्शंस नहीं है, रेडिकल्स कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर चेक करो, कुछ नहीं, इसका मतलब इसका 1 है. हो गया. इसमें ए सेकंड डेरिवेटिव है और ए वाला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. पार्शियल मींस यहाँ पे देखो डो वाई बाय डो एक्स डो टी प्लस एक्स डो वाई बाय डो एक्स. Two or more than two independent variables is there, therefore the given function is partial differential equation, and this is the first order partial differential equation. क्योंकि इसमें सबके जो पावर है और इसकी कितनी है, 1 1 है ना, इसलिए हम किसे क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन.
और दूसरे केस में हमें की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्ट उसमें लिखो, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गए सेपरेबल इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम यहाँ पे रुकेंगे अभी। हमने अब तक क्या देखा? सिलेबस, उसके बाद हमने डेफिनेशन देखे, डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें दो पार्ट रहते हैं, एक ऑर्डिनरी और दूसरा कौन सा है, पार्शियल। अगर एक ही डिफरेंशियल, एक ही अननोन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एक से ज़्यादा आ रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, एक से एक्स्ट्रा है नहीं, तो दो वाई बाई दो एक्स डी, दो एक्स बाई दो वाई। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या है, सिंपल हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या था, डिग्री, द
power of highest derivative. The power of highest derivative, but which is free from, but which is free from radical and fractions. Okay? इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो कल मुझे बताओ इसकी डिग्री और ऑर्डर कितनी आ रही है। एक एग्जांपल क्या होमोसाठी, सॉरी सॉरी यहाँ पे इसमें सही में डालो ना, dy by dx. Take one example for homework. D2y upon dx square bracket raised to 2 by 3 is equal to dy by dx bracket raised to 1 by 2. इसमें रेडिकल भी है और फ्रैक्शंस भी है, तो दोनों को आपको क्या करना है, फर्स्ट रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हम उसको डिग्री और उसके ऑर्डर निकालेंगे। ठीक, मग सॉल्व करा आणि मला उद्या सांगा काय आहे ते, कारण फर्स्ट हे रिमूव्ह व्हायला पाहिजे ना, मग त्याच्यामध्ये एलसीएम वगैरे यूज करता येते बघा। आणि लेक्चरला अब्सेंट राहू नका, रेग्युलर प्रेझेंट राहा।